Hello and welcome to my YouTube channel. Let's start. मेरे प्यारे बच्चों, if you really want to know English, if you want to learn English, if you want to speak English, right? So there are different parameters of learning, but let me clear you certain things in the very beginning, which is a must, a very must. I've seen so many of the YouTube channels where anybody who's getting up from a deep slumber and he's going to take or she's going to take the lectures using whiteboards, etc. Right? And telling you about the grammar rules, of course, which is must one part of it. But let me introduce you and let me scan you through the whole process of it before you choose to learn English. अब इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको हिंदी में समझ आता है बजाय के इंग्लिश के. सो आई एम गोइंग टू मेक इट बायलिंगुअल, राइट. देखिए, सबसे पहले आपको पर्पस पता होना चाहिए, ठीक है, किसी का भी. वी हैव सीन सो मेनी like on the TED speaks, and we have seen so many Josh talks where people have grown up from a scratch and they have literally like risen to the level. मतलब हम बहुत सारी स्पीचेस देखते हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि बंदे ने कैसे ग्रो किया है, ठीक है, अपने आप को. मगर हर एक के पीछे कोई ना कोई पर्पस रहा है. तो बच्चों, यहाँ पे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, which is very must. I am again reiterating on it. Now, this is my handwriting, and I really don't know about the editing portion at all. But here, like, I've done a bit of it, which I think you will be able to manage with me. So, English as a language, right? That covers theory and that covers the practical part of it or pragmatic part of it, जो कि आपका communication skills होता है या फिर आपकी verbal ability आती है, जहाँ पे vocal ability of it. अब पर्पस क्या है यहाँ पे, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो मैंने लिखा हुआ है द पर्पस, आगे क्वेश्चन मार्क है. देखो, बहुत सारे तरीके के पर्पस होते हैं, ठीक है, लोगों के. बट सबसे पहले मिसकॉन्सेप्शन होती है इंग्लिश के लिए. एंड व्हाट इज़ दैट मिसकॉन्सेप्शन? मिसकॉन्सेप्शन इज़ पीपल थिंक दैट हु स्पीक्स इंग्लिश इन अ ब्ला ब्ला मैनर और इन अ वेरी fast pace and without less of or minimum pauses or with very minimal or like less of the pauses, then he or she knows better English, right? So this is a very much misconception. Let me tell you, मैं आपको बता दूं, कोई डिक्शनरी नहीं है, कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है जो कि आपको चेक करेगा कि कोई बंदा इंग्लिश बोल पा रहा है या किस लेवल पे बोल पा रहा है या कितना फास्ट बोल पा रहा है. कोई ऐसी चीज़ नहीं है. इट्स अ वेरी मच and very titled misconception which is already ingrained in our mindsets. दूसरा है, यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन के नीचे आप देखेंगे फ्लॉन्ट लिखा हुआ है. अब आजकल ओवर द पास्ट लाइक मे बी 10-15 ईयर्स, एक डिकेड लगा लीजिए, ट्रेंड क्या चेंज हुआ है? ट्रेंड ये चेंज हुआ है कि लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में जब भी जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ जी, हमें अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, राइट. और I have like people who have already worked in some of the sectors and they told me कि अगर कोई भी बंदा आपसे अच्छी अंग्रेज़ी में बात करता है, then the impression becomes really different from somebody who's really talking to you in any other regional language or any local language for this matter. तो ये एक जो फ्लॉन्ट करने का भी पर्पस है वो भी कहीं ना कहीं पे दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ जी, आता जाता चाहे कुछ ना हो मगर फिर भी हमें अंग्रेज़ी बोलनी है, ठीक है. ये एक दूसरा मिसकॉन्सेप्शन है. थर्ड आता है रियल पर्पस, जिसके लिए ये वीडियो है बेसिकली, ठीक है. इट्स अगेन लाइक डिवाइडेड इनटू थ्री, मे बी मोर हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एकेडमिक पर्पस होगा, ठीक है, स्कूल में. नाउ इट्स अगेन जो कि बहुत देखा है मैंने कि people say that he studied from convent, he studied from the CBSE, ICSE board, right? Let me tell you and trust my words, right? कुछ नहीं होता ऐसे, कुछ भी नहीं होता. I myself have seen like people have studied from government schools and they are really better
in speaking English rather than somebody who's from the ICSE board or CBSE board, and their way of pitching it, their way of speaking is not up to the level. ठीक है। उसके बाद आता है कॉलेज लेवल में। कॉलेज लेवल में अब क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी निकल चुके हैं 10th के बाद, दे आर गोइंग टू मीट इन कॉलेज एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट schools, they are going from they're going to pick different streams for their 10 plus 1 2 and further bachelors picking up। तो उसमें भी आपको एक कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब वहाँ पे क्या 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 होता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को वैसे ही थोड़ा पीछे कर लेते हैं कि हाँ जी, हमें तो जो 10th तक हमने पढ़ा है, 10वीं तक हमने पढ़ा है, शायद उतना नहीं पढ़ा कि हाँ जी जो इन लोगों को आता है। तो एक पर्पस कहीं ना कहीं पे वो भी हो सकता है दैट पीपल हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो मे बी आर फ्रॉम द कॉलेज गोइंग, राइट। थर्ड आता है द यूनिवर्सिटी, राइट। अब कोई भी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं तब तक ऑलरेडी दिमाग की बहुत ज़्यादा कंडीशनिंग हो चुकी होती है आपकी, बट फिर भी आई मीन देर आर सम प्रोजेक्ट्स लाइक इन विच यू हैव टू राइट डाउन, राइट, एंड जहाँ पे आपकी रिटन वर्क आती है, ठीक है, ज़्यादातर। तो वो भी एक पर्पस हो सकता है जो कि इवेंचुअली हमें यहाँ पे लेके जाएगा रिटन वर्क पे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है पर्पस का ही, ठीक है। अब रिटन पार्ट में क्या है, आप बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, एवरीबडी इज़ मेकिंग वीडियो ऑन यूट्यूब दीज डेज कि हाँ जी लेट मी टेल यू हाउ टू राइट अ गुड ब्लॉग, that how can you mint money by just writing few lines, and moreover there are so many vacancies which companies do come up with। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत सारी जॉब्स के साथ आती हैं जो कि कंटेंट राइटिंग की होती हैं, कंटेंट एडिटिंग की होती हैं, ठीक है। तो वो बिज़नेस पार्ट में आ जाता है कि किसी को अगर पर्पस है इंग्लिश का तो वो बोलना नहीं होगा, वो होगा लिखना। प्रमोशंस के पर्पस से भी ये सेम है। अब आता है काम पे, अगर आप काम पे जा रहे हो, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो वहाँ पे भी आप वही चीज़ देखते हो जो ऑलरेडी बच्चे स्कूल में या कॉलेज में देखते आ रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द पीपल लाइक विद द हाई अथॉरिटी, दे प्रेफर टॉकिंग टू इंग्लिश इन सो मेनी multinational companies these days, even the government servants have picked it up right now। तो या फिर एक कैजुअल बिहेवियर होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मुझे इन द कमेंट सेक्शन ये बताना है कि जो पर्पस है, क्या आपका दिमाग में क्लियर है दैट व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। और डू यू वांट टू लर्न द स्पोकन इंग्लिश पार्ट ऑफ इट, राइट, या फिर ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ इट, ठीक है। जबकि इस चैनल पे सारी चीज़ें ये कवर की जाएंगी, इट्स द वेरी इनिशियल वीडियो, सो आई वांट टू नो द रिस्पॉन्ड ऑफ द पीपल, दैट हाउ डू दे रिस्पॉन्ड एंड किस तरीके से चीज़ें आगे चलेंगी, ठीक है। It's my first video, and I have been in touch with people from face to face. So here right now I'm just seeing on the screen something that already you are seeing, right? The same thing. इसके बिना कुछ नहीं है। अभी आ जाइए, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है then let me take you to the another part of it। Okay, now it is this कि go try to find that why जो हमने अभी डिस्कस की है, ये वाली वाई क्या है कि हाँ जी मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है, एंड कम बैक एंड लेट्स लर्न इट टुगेदर, राइट। देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। आई नो दैट यू कैन any point, like we have the facility to skip the video and just move on to the next thing, but trust me, the videos that you'll find on this channel will definitely help you in making you a little bit more knowledgeable, either in terms of writing or in terms of spoken English। जो भी आप चीज़ पिच करेंगे वो ध्यान से देखिए कि प्लेलिस्ट में आप जाके किस चीज़ पे क्लिक करते हैं और कौन सा आप वीडियो सुनते हैं। and it's my humble request to you, and I feel that I'm really fortunate enough, like for मतलब जो भी लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए हैं और ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो दे आर माई फर्स्ट पीपल ऑन दिस सोशल मीडिया टू गेट इंटरेक्टेड विद, right? And I congratulate you all, and thank you so very much for listening, and I hope to see you with the next some of my videos which will give you deep insight। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, राइट, 3 भाषा में आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। राइट डाउन
I mean, moreover, आप लिख दीजिए कि ये these are the doubts. Definitely, and I make you promise and make you assure that I'm going to reply to the comments. Thank you so very much again.